Hello everyone. Myself Pratibha Singh, Assistant Professor of Computer Science Department. Today I will describe the topic spiral model, which is used for software development. In my last lecture, I described SDLC model. So my next video is about a spiral model, that how the project is developed with the different phases used by this spiral model. So let's start here. Content I discussed today is introduction of spiral model and phases, different phases used in a spiral model, what is the use of a spiral model, and advantages and disadvantages during spiral model development, and finally conclude the spiral model. So, who invented the spiral model concept? So here it is. It is described by the Barry Boehm in 1886 in a general paper. He published a paper that name was a spiral model of software development and enhancement. So here it is, that what is a spiral model is basically a combination of iterative and waterfall model. That iterative and waterfall both are the software development model. I will discuss in further video. As we described in my last video, SDLC and waterfall phases are mostly the same, where the iterative model is as we shown in this name. Iterative means iteration. So whatever phases conclude, whatever phases used and used in an iterative model is basically based on the iteration process. So I will discuss in my further video for iterative model and as well as the waterfall model also. So here we focus on the spiral model, which is a combination of iteration and waterfall, where waterfall model is a sequential model where the each process is going through one by one and a sequence wise, and iterative model is just like a incremented model, where the each round and each iteration we add or remove extra features as per the requirement. So here we have the four phases in the spiral model. First is a planning phase, second one is a risk analysis phase, third is the engineering phase, and fourth is the evolution phase. So as we show planning phases, it is very clear that if we plan something, so we include the basic requirements, that what we want to do with this project and this software development process. So यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं कि प्लानिंग फेसेस में बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कितने मैन्युफैक्चरर्स लगेंगे, कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल के साथ बेसिकली डील किया जाएगा, ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कॉस्ट फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट फैक्टर के साथ क्वालिटी इश्यूज पे फोकस किया जाना, किस तरीके से रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स को आप या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के साथ डील की जाएगी। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेकर मैन पावर तक लगती है, इन सारी चीज़ों को एस्टिमेट करना या कंक्लूड करना या उन सारे चीज़ों को आपस में कंबाइन करना प्लानिंग फेसेस का काम है स्पाइरल मॉडल में। रिस्क एनालिसिस में कोई भी काम आप करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क फैक्टर होते ही हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स अपने आप में सेपरेट हैं, तो कौन से मॉड्यूल की वर्किंग कितनी जस्टिफाई हो पाई है, उस वर्किंग को करने के लिए कौन कौन सा रिस्क फैक्टर आ सकता है और उस रिस्क को कैसे आइसोलेट किया जाएगा, ये सारी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है वो रिस्क एनालिसिस के अंतर्गत आता है। अब इंजीनियरिंग फेसेस है नेक्स्ट स्पाइरल मॉडल का, जहां पे कोडिंग से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड या टेस्टिंग से रिलेटेड डील की जाती है कि कोडिंग के लिए कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, फ्रंट एंड और बैक एंड जो आपके हैं वो कौन कौन से लैंग्वेज में बनेंगे, वो लैंग्वेज कितने और कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रखते हैं,
डिटेल डिजाइन और आर्किटेक्चरल डिजाइन में आप कौन कौन से फेसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारा इंजीनियरिंग फेसेस के अंतर्गत आएगा स्पाइरल मॉडल में। एंड फाइनली जब आपका सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता है तो लास्ट फेज है स्पाइरल मॉडल की इवोल्यूशन फेज, जहां पे कस्टमर से डील किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी थी, हमारे जो ये 3 फेसेस थे प्लानिंग, रिस्क और इंजीनियरिंग फेसेस में, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है वो कितना जस्टिफाई कर पाया है यूजर की रिक्वायरमेंट को, कितने रिस्क फैक्टर उसमें कम है, कितने ज्यादा कम मैन पावर या मैन इंटरेक्शन की जरूरत पड़ रही है उसमें, कितना वो सॉफ्टवेयर है मैनुअली वर्किंग को ऑटोमेशन में चेंज कर पाया है, कितने रिस्क फैक्टर को आइसोलेट कर पाया है। ये सारी चीजें स्पाइरल मॉडल के लास्ट फेसेस में आती है, इवोल्यूशन फेसेस में। ये स्पाइरल मॉडल का डायग्राम है जहां पे हम देख पा रहे हैं कि स्पाइरल एक कॉर्ड की तरह ये घूमा हुआ साइन और एरो बना हुआ है, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्पाइरल मॉडल है वाटरफॉल जो कि सिक्वेंशियल है, पर साथ साथ में वो इटरेटिव मॉडल का भी कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो हर एक आपका जो कॉर्ड है ये जिस तरीके से ये मूव करते जा रहा है, हर एक में वो अपनी सिक्वेंशियल ये 4 जो फेसेस हैं वो इसको कवर करता जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बन के रिलीज नहीं हो जाता। सॉफ्टवेयर मॉडल है वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट पे सॉफ्टवेयर मॉडल का इस्तेमाल होना चाहिए, तो जब आपके प्रोजेक्ट का साइज है वो लार्ज है, उसमें डेटाबेस ज्यादा लग रहे हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा फॉर्म की जरूरत है, तब स्पाइरल मॉडल का उपयोग किया जाता है। जब ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें कंटिन्यू रिस्क फैक्टर है, तो वो रिस्क को आइसोलेट करने के लिए स्पाइरल मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। थोड़ा सा रिक्वायरमेंट यदि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और रिक्वायरमेंट को कंटिन्यू क्लैरिफिकेशन या मॉनिटरिंग की जरूरत है यूजर के, तो स्पाइरल मॉडल का उपयोग किया जाता है। जहां जहां भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, स्पाइरल मॉडल का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे भी टाइम फ्रेम जो आपके हैं वो बहुत ज्यादा हैं और एंड यूजर फीडबैक को इम्पोर्टेंट दिया जाना जरूरी है, तो सॉफ्टवेयर मॉडल में स्पाइरल मॉडल का उपयोग किया जाता है। और जब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रिक्वेंटली रिलीज किया जाना है मार्केट में, तो भी आप स्पाइरल मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। स्पाइरल मॉडल के उपयोग से होने वाले जो फायदे हैं या एडवांटेजेस हैं वो इस प्रकार हैं कि डेवलपमेंट इसमें फास्ट होता है, बड़े प्रोजेक्ट आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, बार बार रिस्क इवोल्यूशन फैक्टर जो है वो इसमें काफी स्ट्रांग है, कंट्रोल सारे फेसेस पे बना रहता है थ्रू आउट द डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये इटरेटिव प्रोसेस को फॉलो करता है। सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है क्योंकि ज्यादा मॉड्यूल्स में आपके सॉफ्टवेयर डिवाइसेस डिवाइड नहीं है, ओनली 4 फेसेस हैं। और कस्टमर फीडबैक से हमारा जो सॉफ्टवेयर है या उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो काफी फास्ट होते हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस जो हैं बहुत माइनर डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि स्मॉलर प्रोजेक्ट पे ये काम नहीं करता है, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है तो लिटिल बिट उसके जो अमाउंट है वो अमाउंट थोड़ा सा हैवी हो। ये स्पाइरल कई बार मॉडल क्योंकि ये बार बार इटरेशन की प्रक्रिया करता है, यदि कस्टमर के फीडबैक से कस्टमर का जो फीडबैक है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है, तो जो डेवलपर है उसको एंगेज होना पड़ सकता है। तो स्पाइरल में गो इनफाइनाइट टाइम जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इटरेशन की प्रक्रिया में हर बार कस्टमर के फीडबैक से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए जाते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फीचर्स यूजफुल नहीं रहते उन्हें हटा भी दिए जाते हैं। बट स्टिल डिसएडवांटेजेस बताने हैं किसी चीज के, तभी कोई नई चीज मार्केट में आ पाएगी। सो डिसएडवांटेजेस में ये भी है कि रिस्क एनालिसिस स्पेस जो है इसमें यदि एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा हैंडल नहीं किया जा रहा है तो रिस्क का इवोल्यूशन भी मे भी हो सकता है थोड़ा सा डाउटफुल हो। फाइनली कंक्लूड करते हैं स्पाइरल मॉडल को कि स्पाइरल मॉडल एक लूप की तरह काम करता है, एक इटरेशन की डेवलपमेंट प्रोसेस है जहां पे 4 एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवोल्यूशन। और ये जो है ये प्रक्रिया वाटरफॉल और इटरेशन मॉडल के कंसेप्ट को मिलाकर बनी हुई है। जब भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट यदि बड़े हैं, ज्यादा डेटाबेस की जरूरत पड़ रही है, कस्टमर फीडबैक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या
रिस्क एवोल्यूशन फैक्टर यदि आपको कम करना है या रिस्क आइसोलेट जल्दी करना है तो स्पाइरल मॉडल का उपयोग किया जाता है। तो ये था स्पाइरल मॉडल। आगे आने वाले वीडियोस में मैं वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल और दूसरे जो सॉफ्टवेयर मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है उस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, और यदि आपके कोई व्यूज हैं इस वीडियो को लेकर तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।